less morbidity to the patient because bile duct cut करके suture करना is a difficult task. Patient might leak, biliary peritonitis हो सकता है. So from being an alternative, now it has become the treatment of choice. Many things. From that, now we have moved ahead. Endoscopic resection, closure of defects, and US guided intervention. Somebody here probably had just referred me. Patient को बड़े-बड़े mediastinal node थे. Patient had CKD and there were big nodes in the chest, periportal area में. So initially CT guided biopsy was being done, but problem with CT guided biopsy is one thing is inaccessible area, यानी पैंक्रियास के पीछे कोई lymph node है या मीडियास्टिनम में कोई बड़ा lymph node है जिसके आजू बाजू पल्मोनरी आर्टरी है, आयोटा है. So from outside it is very difficult to do. And the other thing is कि पेन बहुत होता है. आपने पेशेंट को नीडल पंक्चर कर रहे हैं तो the patient will complain of pain. So US guided intervention has come where we put an endoscope inside, उसमें अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है, वो लगा के हम लोग डायरेक्टली अंदर से नीडल पंक्चर कर देते हैं. It is painless, more accurate, and cost wise it is almost same. So many things have come up now. Endoscopic resection means छोटे मोटे ट्यूमर्स पहले से पॉलिप निकाले जाते थे, अब फ्लैट ट्यूमर निकाले जाते हैं. नाउ अर्ली कैंसर्स वी हैव स्टार्टेड रिमूविंग बिकॉज सुपरफिशियल कैंसर है जिसमें नोड्स में मेटास्टेसिस नहीं हुआ है या कहीं और मेटास्टेसिस नहीं हुआ है. कोलॉन में एंड स्टमक में वी कैन रिमूव बाय डूइंग एंडोस्कोपी. ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स अ हाई एंड सेटअप, इट रिक्वायर्स very high definition endoscopes and it requires very high cauteries that will allow you to do all these things. So the treatment cost comes to close to a surgery only, but the good part is comorbidity कम है. आपने अंदर सब कर दिया. There is no scar, there is no incision, there is no post-op, उतना प्रॉब्लम नहीं होता है. So as I said, पहले पॉलिपेक्टमी आया था, एक छोटा सा गार्ड है उसमें स्नेर डाल दो, निकाल दो. This was the initial thing, but now after that फ्लैट ट्यूमर्स आ गए हैं. अब ESD आ गया है. फ्लैट ट्यूमर्स को हम निकालते हैं. ESD मतलब नीचे तक के ट्यूमर्स को हम लोग कट करके निकाल सकते हैं. So all those technologies have come because certain times somebody has advised plan for an ESD. So people do call us कि सर ये ESD क्या है, कौन करता है. तो ESD is endoscopic submucosal dissection. That means अगर कोई छोटा रेक्टम में ट्यूमर है जो अंदर थोड़ा स्प्रेड भी हुआ है, we can still remove by doing an ESD. सर्जरी का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है. So initially it was just the first phase, that means lumen होता था. Surgeons started entering the second phase, which means extraintestinal. Now everywhere we are talking about third phase. Third phase का मतलब म्यूकोजा के नीचे सब म्यूकोजल चीजें हम निकाल लेते हैं. And fourth phase is intraductal. So आपको पता होगा पोएम किया जाता है. पेशेंट का हमने किया था रिसेंटली, आपको याद होगा. So poem, many people ask us what is poem. POEM. Poem is for oral endoscopic myotomy. उसका मतलब पहले जो अकेलेजिया कार्डिया हो गया है. So अकेलेजिया कार्डिया means जो G junction relax नहीं होता and patient starts to have dysphagia. Only treatment was Heller's myotomy. So Heller's myotomy में patient को ट्रांसथोरैसिक वैट्स करके अंदर घुसो, इसोफेगस को कट करो, बाहर से सूचर करो. Obviously cost is there and the मतलब patient को recovery time takes almost 5-7 days now. Now with poem which has come up last almost 5 years, I must have done around 35 poems till now. आज सुबह ऑपरेट करो, अगले दिन मॉर्निंग पेशेंट को we feed and by next day evening we send them home if it is uncomplicated. No scar. माइल्ड चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है 3-4 दिन के लिए. लिक्विड डाइट पे रखना पड़ता है 3 days एंड देन पेशेंट इज गुड टू गो. सो पेशेंट इज कंफर्टेबल बिकॉज कोई सर्जरी की निशान नहीं है एंड द अमाउंट ऑफ पोस्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड. सो वन ऑफ अ वेरी मोस्ट एडवांस टेक्निक विच हैज कम अप नाउ. स्लोली पहले इफ कुछ लोगों को पता होगा कि अकेलेजिया के लिए बलून डायलिटेशन किया जाता था. दैट हैज बिकम आउट नाउ. इट्स आइदर हेलर्स और पोएम. नाउ हेलर्स धीरे धीरे कम हुआ जा रहा है बिकॉज हेलर्स में तकलीफ उतना ज्यादा होता है. पोएम इज कम अप अ बिग ऑल्टरनेटिव नाउ.
fantastic procedure. Now being available at more and more places. पहले only 1 or 2 centers in Mumbai करते थे. There are 3, 4, at least 4, 5 centers which do, but very good. Interventional EUS guided procedures. जैसे अगर पेशेंट को मान लीजिए सीए स्टमक हो चुका है एंड पूरा स्टमक एंड डिओडनम ब्लॉक हो गया, पेशेंट कीप्स ऑन वॉमिटिंग. सो पहले क्या होता था, अगर पेशेंट खा ही नहीं रहा है, सब कुछ पेट में है, तो क्या करना है, कीमो देने के पहले भी फीडिंग का कोई तरीका करना है. सो कई बार मेटल स्टेंट डाला जाता है उस ग्रोथ के अंदर से. कई बार सर्जन सोचते हैं जीजे कर दो, गैस्ट्रोजेजुनोस्टॉमी, ताकि स्टमक से डायरेक्टली फूड जेजुनम में चला जाए. सो सर्जिकल जीजे हुआ ही करते थे, बट अगेन ये जो पेशेंट्स होते हैं बैड होते हैं, दे आर वीक, दे आर सिक. कई बार असाइटिस होता है उनको. सो सर्जन इज ऑल्सो नॉट विलिंग टू ऑपरेट. इधर टेबल पे लेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ ही ना हो जाए, एंड ऑब्वियसली दे आर वेरी सिक. सो नाउ EUS guided, straight away we can put stent from stomach to jejunum. That means endoscopically we are able to do GJ. Cost is slightly lesser as compared to the surgery, but safety wise it is more, because हम और कहीं एंटर ही नहीं कर रहे हैं, हमें इंसिजन ही नहीं लेना है. क्योंकि एक एसाइटिस के पेशेंट में आप अगर इंसिजन ले रहे हो तो फिर वो लीकेज चालू ही होने वाला है. बाद में पेशेंट रोज कंप्लेन करेगा, पानी आ रहा है, क्या करे इसका. सो फ्रॉम आउटसाइड, ऑपरेटिंग फ्रॉम आउटसाइड, वी आर नाउ गोइंग फ्रॉम इनसाइड, सो दैट अंदर ही अंदर काम हो जाए, पता ही नहीं चले. जैसे गायनेक में हिस्टेक्टोमी होती थी या वजाइनल हिस्टेक्टोमी होती है, क्यों होती है, ताकि देयर इज नो स्कार. सो दिस इज हाउ थिंग्स आर इवॉल्विंग नाउ. जितना अंदर से कर सके उतना ज्यादा इट बिकम्स टेक्निकली चैलेंजिंग, बट रिजल्ट वाइज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, बिकॉज वो नेचुरल ल्यूमन के थ्रू होता है, नेचुरल ओरिफिस के थ्रू होता है. सो ये बहुत ही ये है. समथिंग विच इज नाउ कमिंग अप इज टिश्यू रीमॉडलिंग एंड रीसर्फेसिंग. नाउ दिस विल टेक सम टाइम, बट लॉट ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन. इसका मतलब ये है कि जैसे हमने ये सोचा है कि पेशेंट का ओबेज है तो बेरियाट्रिक सर्जरी है, स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी करा दिया, एंडोस्कोपी वाइज बलून डाल दिया पेशेंट में कि स्टमक में बलून डाला है, थोड़ा सा वेट लॉस हो जाएगा. All those things are there. Now from there we are advancing to tissue remodeling. इसमें डिओडनम में घुस के पूरा डिओडनम जेजुनम को you kind of burn from inside, so that and you place certain organisms जो अंदर ग्रो होते हैं और जो नया म्यूकोसा डेवलप होता है वो एब्जॉर्प्शन कम कर देता है, तो पेशेंट स्टार्ट्स लूजिंग वेट. सो दिस इज नाउ कंसिडर्ड टू बी द फ्यूचर. कि धीरे ये सब इट इज अगेन अभी ये अर्ली स्टेजेस में है, लेकिन 8, 9, 10 महीने में पीपल हैव लॉस्ट 10, 12 kgs वेट. स्टिल नॉट कम इनटू द ट्रीटमेंट राइट नाउ, बट धीरे जैसे पोएम चालू हुआ था 2006-07 में शुरू होना, रियल न्यूज में आया 2013-14 के बाद से. सो इट टेक्स अ टाइम टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नॉट हैपनिंग, सारी चीजें. बट दिस इज coming up. Then there is something called ductoscopy. Ductoscopy means to enter into those lumen which we were not entering. जैसे bile duct के अंदर अभी before leaving, I did a case at clinicals right now जिसमें mid CBD में ट्यूमर है जिसका बायोप्सी नहीं आता है. Now we have a scope called cholangioscope. जैसे हम ERCP करते हुए bile duct तक पहुंचते हैं, फिर cholangioscope डाल के हम bile duct के अंदर घुस जाते हैं और उसका बायोप्सी ले सकते हैं. So now all the ducts we are trying to enter. जैसे pancreatic duct है, उसके मिड में ट्यूमर है, तो we can enter there and take biopsy. These things are available now. Obviously it comes at a cost. मतलब normal ERCP will cost you around 40,000-45,000 rupees. A SPY, that means going inside the bile duct, will cost you around 1.5 lakh rupees. But still quite manageable. So you need to say अभी अगर कोई डिटेल्स है किसी rather than remove. ई पोएम मतलब जैसे मैंने पोएम अकेले बताया, वैसे ज़ेनकस डायवर्टिकुलम है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड जेड पोएम. इफ देयर इज गैस्ट्रोपेरेसिस तो वी डू जी पोएम. जैसे पेशेंट को इतना ज्यादा गैस्ट्रोपेरेसिस है कि कुछ भी ट्रीटमेंट कर लो ना, मेडिकल हो, पेशेंट को ब्लोटिंग है, आप स्कोप डाल रहे हो, आधा लीटर मेरे को खाना हमेशा ही मिलता है, पानी मिलता है, समथिंग हैज टू बी डन फॉर इट. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड जी पोएम, जहाँ पे हम लोग पाइलोरिक एरिया को कट कर देते हैं सो दैट स्टमक थोड़ा सा खुल जाता है एंड द पेशेंट स्टार्ट्स
digesting the food well. So all these things are available. Obviously there are strict criteria. हर किसी को नहीं आप इसको सब्जेक्ट कर सकते कि ये भैया गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, ये कर दो ना. It's not like that. But yes, there are so many things which has come up now. Only thing we should be aware of things that these things are happening. So from clips, जैसे मैंने पहले बताया, क्लिप से आप ओवर द स्कोप से आ गए हैं चीजें जिनसे ये हो गया. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एंडोसिंच हो गया, उससे ज्यादा इफेक्ट बलून का कम आता है. देयर आर पेशेंट्स हु माइट लूज टेन, यानी जो स्टमक ऐसा था उसको हमने सुचर करके ट्यूब जैसा बनाया फ्रॉम इनसाइड. सो विद दैट जो आप सर्जरी करा के कर रहे थे वही आप एंडोस्कोपी कर लेते हो. तो अगेन स्कार चला गया, कोमॉर्बिडिटी लेस हो गई. हाँ, अभी इस चीज ने इतना पिकअप नहीं किया, मतलब ब्रीच कैंडी ग्लोबल ये सब जगह होते ही है. बट ऑब्वियसली व्हाई दिस इज नॉट कम दैट मच इनटू पिक्चर, बिकॉज स्टिल इसका कॉस्ट एक कन्वेंशनल सर्जरी से जाता है. तो पेशेंट को यही बोलेगा सर सर्जरी हो जा रही है 3 लाख में, तो मैं 5 लाख में ये क्यों करूं. दैट्स अ लॉजिकल थॉट, बिकॉज दीज डिवाइसेज आर स्टिल वेरी कॉस्टली. सो जब तक कॉस्ट थोड़ा और कम नहीं होता है, प्रोबेबली दिस विल नॉट ओवरटेक सर्जरी. बट जिस दिन इसके कॉस्ट कम होने लगे, बिकॉज ये जो एंडोस्टिच डिवाइस में जो एक सूचर यूज होता है, वो एक सूचर का कॉस्ट इज 5,000 रुपीज एंड यू माइट यूज एटलीस्ट 10, 15, 20 सूचर्स. वो एक सूचर ही 5,000 का पड़ता है. सो टिल द टाइम दीज कॉस्ट डोंट कम डाउन प्रोबेबली, बट फैंटास्टिक टेक्निक्स विच हैज कम अप. अंदर से ही आप सूचर कर लेते हो. आई विल शो यू वीडियो. दिस इज ऑल्सो सो दिस, ये पहले अगर सपोज एक बड़ा सा रेक्टम में बड़ा सा अल्सर है या फिस्टुला है, दिस थिंग वाज शोन टू ट्रीट अ रेक्टोवैजाइनल फिस्टुला. गायनेक पेशेंट रेक्टम एंड वजाइना में फिस्टुला है, तो अगर ये फिस्टुला हो गया है तो ये किसी चीज से ठीक नहीं हो रहा है, तो दिस इज एन एंडोसिंच डिवाइस. ये फिस्टुला है, आप उसके बाजू में जाते हो, अपने अंदर से टिश्यू को पकड़ा, इंजेक्ट किया, एक तरफ पकड़ा, इंजेक्ट किया. अब देख रहे हैं, दिस वी हैव यूज्ड, इट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट. हमने अभी एक रेक्टोवैजाइनल फिस्टुला को क्लोज किया था. दिस इज हाउ वी क्लोज इट. ये पूरा इंस्ट्रूमेंट असेंबली है, नाउ इट इज अवेलेबल. दैट फीमेल हैड कम फ्रॉम ओमान बेसिकली एंड नहीं हो रहा था, तो शी हैड कम, सो वी डिड दिस एंड गुड रिजल्ट. Obviously again it comes at a cost, but these treatments are available. वरना एक young female 32 years की जिसको rectovaginal fistula है, it is obviously painful for her, socially disturbing for her, and to ask her to undergo a surgery is again a big thing, क्योंकि इस एरिया में सर्जरी करना again becomes complicated. So again now this, if I show you बैड पेशेंट, सर्जरी के अलावा पहले कोई ऑप्शन नहीं होता. नाउ वी हैव सूचरिंग डिवाइसेस. जैसे आप सबने CLW सूचर किया ही होगा, राइट? जब भी आप इंटर्नशिप या करते हैं जो भी, तो CLW या क्लिनिक में भी करते ही होंगे. तो सूचर कैसे हम ये करके करते हैं. अब नाउ एंडोस्कोपिकली ऑल्सो दिस इज कम. सो ये विद द हेल्प ऑफ एंडोस्कोप वी आर ट्राइंग टू सूचर. यू सी वही है, वही नीडल है, वैसा ही है, बट ऑब्वियसली द इसमें एक तो स्किल इन्वॉल्व इज मोर एंड these instruments which have to go through the endoscope, it has to be modified such कि एंडोस्कोप के चैनल में से जाना पड़ता है. तो these are very very fine. ये मैग्नीफाई होके दिख रहा है इसलिए अपने को ऐसा लगता है, but these are so fine कि इसमें that is the reason the cost is there. But you see, जैसे हम एक CLW सूचर करते हैं, same way we are suturing inside the stomach. So अगर कोई बड़ा सा ट्यूमर हमने रिसेक्ट किया है, तो ट्यूमर को आइदर हम इस तरह से सूचर करते हैं या हम क्लिप करके सूचर कर देते हैं. So these things are now come up available. As I said, full thickness resections आ गए हैं. पहले सिर्फ और सिर्फ पॉलिप निकाले जाते थे. अब जिस्ट है, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं, जो विद द हेल्प ऑफ स्कोप्स वी कैन